ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਜ਼ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ। ਕਿ ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿ R1 + R2 + R3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ R1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I that is equal to V/R, ਜੋ ਸਰਕਟ ਦਾ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ two cells having EMF E1 and E2 having internal resistances R1 and R2 are connected in series। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ EMF E1 ਹੈ, ਇਸ ਦੀ E2 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R1 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ you can represent simply by writing R1 and R2, no need to represent resistance over here। ठीक है, तो इन्ह पॉइंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ A, B and C। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ I ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਜੇ ਸਰਕਟ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੈਟ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਟ EMF ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ E ਇਕੁਅਲੈਂਟ, ਨੈਟ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ R ਇਕੁਅਲੈਂਟ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ C ਤੇ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ I ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ VA ਹੈ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ VB ਹੈ ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ VC ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ VAB। VAB ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ VA - VB। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ EMF ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਰਕਟ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I × R1। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ V ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E - I × R। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ we can write V is equal to E - IR। ਤੇ PDF ਨੋਟਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਥੀਜ਼ ਨੋਟਸ। ਤਾਂ VAB ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ VBC ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ VBC ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? VB - VC। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? E2 EMF - I × R2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ VAC ਫਾइंड करना है। ठीक है,
तो वी ए सी किस दे इक्वल होएगा जी, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, बट असी इन्होंने दोनों इक्वेशनस तो फाइंड करते हैं। देखो असी भी लिख सकते वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, कि जे असी वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी करिए तो वी बी तो वी बी कैंसल हो जाएगा जी, वी ए माइनस वी सी आ जाएगा। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू असी इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, ये आ जाएगा ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। ठीक है जी, हुण इन्हां दोनों इक्वेशनस दे विच देखो असी ई वन तो ई टू कंबाइन कर लैंदे आ, दोनों प्लस दे है तो ई वन प्लस ई टू, तो माइनस आई आर वन तो माइनस आई आर टू, इन्होंने दोनों चो आई कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा जी, बाहर माइनस आई आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इतने आर वन माइनस आर टू ना कर दिया जी गलती ना। क्लीयर हो गया, तो ये आ गया जी अपने को वी ए सी, इसनों नंबर दे देंगे जी 3। हुण देखो जी यही वी ए सी असी फाइंड करिए फ्रॉम दिस सर्किट, कि वी ए सी फाइंड करिए, तो वी ए सी तो फिर यही फॉर्मूला लगा दिए जी, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो वी ए सी किस दे इक्वल बनेगा, देखो तो वी ए सी बनेगा जी ई इक्वलेंट जो सेल दी ई एम एफ है माइनस जो करंट है मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट। ठीक है जी, 3 तो 4 की लैफ्ट हैंड साइड सेम है, तो असी राइट हैंड साइड में कंपेयर करते हैं, कंपेयर 3 एंड 4 तो की बनेगा वी ए सी सेम है जी। देखो तो ई इक्वलेंट किस दे इक्वल बन जाएगी, ई वन प्लस ई टू। आर इक्वलेंट किस दे इक्वल बन जाएगा, आर वन प्लस आर टू। इसका मतलब जो असी सैल्स नूं सीरीज़ दे विच लगाने आ तो सीरीज़ दे विच भी इस तरह लगाने आ, देखो कि एक सैल का जिहड़ा नैगेटिव है वो दूजे सैल के पॉजिटिव नाल ज्वाइंड है। ठीक है, तो जे अगे फिर होर सैल्स होणगे तो इस तरह इनका नैगेटिव अगले के पॉजिटिव नाल ज्वाइंड होएगा, मतलब एक का नैगेटिव दूजे के पॉजिटिव नाल। इस तरीके नाल असीं अगे कनैक्ट करते रहने हैं। तो जिहड़ी सैल्स दे विच नैट टोटल ई एम एफ आती है वो दोनों सैल्स की ई एम एफ का सम होंदे है। ठीक है जी, तो घरे जो असीं टॉयज़ यूज़ करते हैं, रिमोट यूज़ करते हैं, उन्होंने विच सैल्स इस तरीके नाल पाए होंदे हैं कि एक का नैगेटिव दूजे के पॉजिटिव नाल ज्वाइंट होंदा है। तो इस तरीके नाल उन्हां दा इंटरनल रजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। जो नैट इंटरनल रजिस्टेंस है वो भी सीरीज़ दे विच आ रहा है, आर वन प्लस आर टू आ रहा है। ठीक है जी, हुण देखो थोड़ा जिहा असीं चेंज करिए, जे असीं सैल्स नूं रिवर्स लगा दिए, सोचो जी जे इस तरह लगा दिए जी, पहले सैल नूं पॉजिटिव फिर नैगेटिव नूं ही नैगेटिव नाल कनैक्ट कर दिए, मतलब ये साडा ई वन है, ये साडा ई टू है जी। फिर की होएगा जी, फिर जिहड़ियां इक्वेशनस बननगियां, जिहड़ी सैकेंड इक्वेशन बनी सी इहदे विच माइनस ई टू हो जाएगा इत्थे। ठीक है, सिर्फ यही इत्थे माइनस ई टू होएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। जो इत्थे माइनस ई टू हो जाएगा तो इत्थे भी माइनस ई टू हो जाएगा, इत्थे प्लस रहेगा जी। ठीक है, क्योंकि रजिस्टेंस दे विचों करंट किसी भी डायरैक्शन चों पास करे। ठीक है, वो उस तरीके नाल ही काउंट होएगा। सैल दे विच जदों ई एम एफ आप नैगेटिव टर्मिनल पहला आएगा तो ई वन माइनस ई टू हो जाएगा जी इत्थे। ठीक है, तो की चेंज होएगी जे असीं इन्हां नूं इस तरीके नाल कनैक्ट कर देंगे कि नैगेटिव नूं नैगेटिव नाल कनैक्ट कर देंगे, दैन इक्वेशन नंबर 2 चेंज हो जाएगी जी। ठीक है, वी बी सी चेंज हो जाएगी, वी बी सी हो जाएगी जी माइनस ई टू माइनस आई आर टू। बाकी सारा प्रोसैस सेम रहेगा जी। जो तुम इक्वलेंट ई एम एफ कैलकुलेट करोगे तो वो बन जाएगी जी ई वन माइनस ई टू। ठीक है, तो जो आर इक्वलेंट कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा जी आर वन प्लस आर टू। ठीक है, मैं दोबारा फिर दस रहा कि सिर्फ इत्थे चेंज आएगी जी, माइनस ई टू हो जाएगा। अगे तुसीं कैलकुलेशन करके देख लिया जी। ठीक है, तो इस तरीके नाल फिर सैल्स नूं ज्वाइन करने का कोई बेनीफिट नहीं है। वो एक दूजे की ई एम एफ नूं कैंसल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नूं कैंसल कर रहे हैं, तो सर्किट दे विच जो ई एम एफ है वो डिक्रीज़ होएगी। ठीक है जी। हुण देखो जी असीं दो सैल्स ज्वाइन कर रहे हैं हैविंग ई एम एफ ई वन एंड ई टू।
एंड इंटरनल रजिस्टेंस R1 एंड R2 इन्होंने असीं पैरलल दे विच कनैक्ट किया। पैरलल दे विच किवें कनैक्ट हुंदे देखो दोनों सैल्स जिस तरह रजिस्टर कनैक्ट कीते सी असीं कि उन्हां दोनों दा एक एंड जिहड़ा है वो एक जगह ते कनैक्टड है तो दूसरा एंड भी इक्को जगह ते कनैक्टड है। ठीक है, इहदे विच असीं सैल्स नूं इस तरीके नाल लगा रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल नूं पॉजिटिव नाल कनैक्ट कर रहे हैं तो नैगेटिव नूं नैगेटिव नाल कनैक्ट कर रहे हैं। देखो असीं दूजो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो असीं एंड ते जाके स्पैशल केस दे विच करांगे। तो ये सैल्स जो इन्हों लगाने आ तो इन्हों की इक्वलेंट EMF नूं असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं E इक्वलेंट नाल ते नैट रजिस्टेंस नूं कैलकुलेट कर रहे हैं R इक्वलेंट नाल, रिप्रजेंट कर रहे हैं R इक्वलेंट नाल। ठीक है जी, हुण असीं फाइंड करना है जी E इक्वलेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2 गिवन वैल्यूज़ इन टर्म्स दे विच। ठीक है, तो इस तरीके नाल असीं R इक्वलेंट फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ दीज E1 E2 R1 एंड R2 के टर्म्स दे विच। तो देखो जी इक्वेशनस फाइंड करते हैं असीं क्योंकि पैरलल दे विच पोटैंशियल डिफरेंस सेम हुंदा जे असीं पॉइंट A ते B दे विच पोटैंशियल डिफरेंस फाइंड करिए भावें वो इस आर्म दे विचों फाइंड करिए जां इस आर्म दे विचों फाइंड करिए। तो इत्थे पैरलल दे विच दस्सिया सी कि जदों भी सर्किट दे विच करंट फ्लो करदा सपोज करो कि I करंट फ्लो कर रहा है तो पैरलल दे विच डिफरेंट आर्म्स दे विच डिफरेंट करंट जांदा है तो इस सैल करके करंट फ्लो कर रहा है I1 इहदे चों बाहर जाएगा तो इहदे विच I1 ही अंदर जाएगा। ये बिल्कुल क्लीयर कर लो। ठीक है, जिवें इहदे विचों I2 बाहर जा रहा है तो I2 इहदे अंदर जा रहा है तो दोनों करंट I1 ते I2 कंबाइन करके I बन जाते हैं। वो किसी एक्सटर्नल सर्किट चों फ्लो करते हैं तो फिर बैक करंट I। ठीक है, वो एक्सटर्नल सर्किट असीं इत्थे शो नहीं कर रहे कि एक्सटर्नल सर्किट की है तो I1 ते I2 दोनों आर्म्स दे विच करंट डिफरेंट है बट दोनों दे विच पोटैंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो सेम रहेगा। तो भावें असीं पोटैंशियल डिफरेंस VA ते B पॉइंट दे विचों असीं VAB फाइंड करते हैं जी। देखो तो VAB किस दे इक्वल होएगा VA माइनस VB असीं उपर वाली आर्म दे विचों फाइंड करते हैं जी तो होएगा E1 माइनस I1 ते R1। सिमिलरली जे असीं नीचे वाली आर्म दे विचों फाइंड करते हैं VAB तो सेम होएगा जी VA माइनस VB बट इन टर्म्स ऑफ E2 माइनस I2 ते R2। समझ लगी जी। तो ये दो इक्वेशनस अपने कोले आ गई। हुण असीं फस्ट इक्वेशन दे विचों I1 फाइंड करना है, सैकेंड इक्वेशन दे विचों I2 फाइंड करना है क्योंकि इत्थे असीं इक्वेशन यूज़ करनी है कि I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I कि I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इन्हां दोनों दे विचों I1 ते I2 दी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखो किस तरह फाइंड करते हैं। फस्ट इक्वेशन दे विचों I1 R1। ठीक है, तो इधर देखो जी मैं तुहानूं फाइंड करके दिखाना। तो VAB किस दे इक्वल है VAB इक्वल है E1 माइनस I1 R1। तो I1 R1 नूं इधर ले आओ जी तो I1 R1 किस दे इक्वल हो जाएगा E1 ये उधर ले जाओ जी माइनस VAB। ठीक है, R1 नूं डिवाइड कर दिओ तो I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R1। तो फस्ट इक्वेशन दे विचों असीं I1 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली सैकेंड इक्वेशन दे विचों फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट I2 किस दे इक्वल हो जाएगा I2 इज़ इक्वल टू E2 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R2। तो असीं सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं जी। देखो ठीक है, तो आ I1 ते I2 दी वैल्यूज़ आ गई जी अपने कोले। ये वैल्यूज़ असीं पुट कर दिंदे हैं इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो I किस दे इक्वल बन जाएगा तो E1 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R2। इसनों असीं उस तरीके दे नाल E वाली टर्म सैपरेट कर लैंदे आ E1 बाय R1 इहदे चों आ जाएगा प्लस E2 बाय R2। ये दो टर्म्स बन जाएंगे जी माइनस VAB बाय R1 माइनस VAB बाय R2। डिनोमीनेटर सैपरेट कर लिया मतलब E1 बाय R1 माइनस VAB बाय R1। तो E वाली टर्म्स असीं अलग कर लिया तो VAB बाय R1 तो VAB बाय R2 अलग कर लिया जी। ठीक है, तो देखो जी हुण असीं इन्हां दा LCM ले लैंदे आ। R2 इत्थे मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 इधर हो जाएगा नीचे R1 R2 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। सेम वे दे नाल इहदे विचों VAB कॉमन ले लैंदे आ बाकी दा आपां LCM ले लांगे।
ठीक है जी। तो नैक्सट स्टैप के की बनेगा जी, देखो नैक्सट स्टैप के बन जाएगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2 माइनस VAB कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, देखो अंदर आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है जी। तो नैक्सट स्टैप के आप इनका भी एलसीएम ले लें। तो ये बनेगा R1R2 नीचे, R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टैप ये इदा ही रहेगा जी, एज इट इज़ आप लिख लें। तो करंट किस दे इक्वल हो जाएगा, तो करंट इज़ इक्वल टू हो जाएगा जी ये टर्म सेम टू सेम माइनस VAB R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1R2। हुण इस इक्वेशन के विचों असीं एक्चुअल दे विच VAB फाइंड करनी है। ठीक है, जिस तरह लास्ट टॉपिक के विच कीता सी VAB फाइंड करनी है। तो इस सारी टर्म नूं असीं दोनों साइड्स ते असीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय द टर्म R1R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखो की बनता है। ठीक है, जो असीं इसनूं मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई दे नाल मल्टीप्लाई हो गया जी R1R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जो असीं इस चीज़ नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इहदे नीचे R1 प्लस R2 है, इहदे उपर R1 प्लस R2 है। ये मल्टीप्लाई करने से कैंसल हो जाएंगे तो नीचे ये टर्म आ जाएगी जी, बनेगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस VAB। जो इसनों मल्टीप्लाई करांगे जी इस टर्म नाल तो R1R2 तो R1 प्लस R2 दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे, कल्ला VAB बच जाएगा। ठीक है जी। तो हुण इसनों अगे असीं फर्दर किवें सॉल्व करते हैं, देखो VAB नूं असीं लैफ्ट साइड ते लैके आना है क्योंकि VAB फाइंड करना एक्चुअल दे विच। इक्विवेलेंट सर्किट दे विचों फिर आपां दोबारा VAB फाइंड करांगे ना, तो VAB नूं ले आओ जी इस साइड ते, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्म नूं ले जाओ दूसरी साइड ते। तो देखो की बनता है, तो VAB की बन जाएगा, VAB बन जाएगा जी E1R2 प्लस E2R1 ओवर R1 प्लस R2 माइनस IR1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हुण असीं इक्विवेलेंट सर्किट लैके चलते हैं जी। इक्विवेलेंट सर्किट तो फाइंड करते हैं VAB। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट तुहानूं याद होगा जी, देखो तो ये साडा इक्विवेलेंट सर्किट है जी। इहदे विच जदों असीं VAB फाइंड करांगे टर्मिनल पोटैंशियल डिफरेंस, तो किस दे इक्वल किस दे इक्वल होएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो जी की बनेगा, तो ये बनेगा जी VAB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं असीं हुण कंपेयर कर लांगे। ठीक है, तो कंपेयर करके जिहड़ी ए वाली टर्म है सारी E इक्विवेलेंट बनेगी, तो जिहड़ी ए टर्म है ये R इक्विवेलेंट बनेगी। इसका मतलब E इक्विवेलेंट किस दे इक्वल हो जाएगा, E1R2 प्लस E2R1 ओवर R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट किस दे इक्वल हो जाएगा, R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्योंकि जे ये तो पैरल कॉम्बीनेशन बन गया जी, तुहानूं दिखाई दे रहा होएगा जी। असीं इहनूं इस तरह लिख लीए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब पैरल दे विच जो असीं सर्किट लगाया सी तो R1 R2 आपस दे विच पैरल च सीगे, तो उन्हां दा रजिस्टेंस टोटल रजिस्टेंस भी पैरल दे विच ही होएगा नैचुरली। तो वही रिजल्ट आ रहा जी। तो देखो दोनों रजिस्टेंस 1/R1 तो 1/R2 का पैरल कॉम्बीनेशन बन रहा है, तो रजिस्टेंस इन पैरल बन रहा है R इक्विवेलेंट। ठीक है, हुण E इक्विवेलेंट भी आ गया जी, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जे असीं इनूं इहदे नाल डिवाइड कर दईए तो इन्हें दोनों के नीचे R1 प्लस R2 है, आपस में कैंसल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा जी E1R2 प्लस E2R1 ओवर R1 प्लस R2। या असीं इसनूं इस तरह लिख सकते हैं, जे असीं विदाउट एलसीएम लईए सॉल्व करिए तो E1/R1 प्लस E2/R2। तो ये E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का रिजल्ट है। ठीक है जी, हुण असीं इसका एक होर केस बनाने हैं, देखो स्पैशल केस। जे असीं इस तरह कनैक्ट कर दईए कि एक सर्किट का पॉजिटिव तो दूसरे का पॉजिटिव नूं नैगेटिव कनैक्ट कर दईए जी। फिर तुसीं की करना है जी, जिहड़ी EMF E2 आ रही है ये एक्चुअल दे विच सर्किट दे विच काम करेगी एज माइनस E2। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स असीं उपर फाइंड कीते हैं तो तुसीं उहदे विच की करना है जी, E2 नूं चेंज कर देना है इन माइनस E2। बस मतलब इस रिजल्ट के आ जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2, बस यही जी। ठीक है, तो इफ वी हैव जे साडे कोल N सैल्स होण जी कनैक्टेड इन पैरल, तो इत्थों असीं रिजल्ट बना सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट किस दे इक्वल बनेगा, E1/R1
प्लस E2/R2। तो जिन्ने भी सैल्स है जी असीं उन्हां लई ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली R1/R इक्वलेंट किस दे इक्वल होएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn। ठीक है, हुण देखो जी इसका एक होर स्पैशल केस करते हैं एन सैल्स का। सपोज करो कि एन सैल्स की EMF इक्वल है, कि सारे सैल्स की EMF सेम है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू अपल टू EN इज इक्वल टू E, सब नूं आपां E कह देंगे जी। ठीक है, तो फिर आ इक्वेशन की बन जाएगी E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट, ये बन जाएगी जी E/R प्लस E/R प्लस E/R। ठीक है, कितनी टाइम्स हो जाएगी NE/R। ठीक है, इस तरीके नाल R इक्वलेंट किस दे इक्वल हो जाएगा 1/R इक्वलेंट 1/R प्लस 1/R करते करते टोटल कितना हो जाएगा जी N/R। ठीक है, तो हुण देखो जी जे ये N/R आ गया तो R इक्वलेंट किस दे इक्वल हो जाएगा, ये तो 1/R इक्वलेंट है ना, तो R इक्वलेंट किस दे इक्वल हो जाएगा रेसिप्रोकल ले लो R/N। तो जे इहदे विचों असीं E इक्वलेंट फाइंड करनी है तो R इक्वलेंट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इक्वलेंट की बन जाएगा NE/R मल्टीप्लाइड बाय R इक्वलेंट। NE/R मल्टीप्लाइड बाय R/N, N नाल N कैंसिल हो जाएगा, R नाल R कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू E आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो असीं N सैल्स नूं पैरलल दे विच लगावांगे तो सारिਆਂ ਦੀ EMF E है, तो नैट EMF भी E रहेगी। ठीक है, बट नैट इंटरनल रजिस्टेंस जिहड़ा है वो N टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा जो असीं इस रेसिप्रोकल करांगे तो R/N हो जाएगा। तो ये असीं तां कर रहे हैं जो सर्किट्स नूं सॉल्व करांगे तो उदों साडे कोल पैरलल या सीरीज़ दे विच सैल्स लगे होणगे। ठीक है, तो उन्होंने जो सॉल्व करांगे तो फिर सानू ये चीज़ जी है समझनी पएगी कि हुण नैट EMF सर्किट की कितनी आ रही है, तो उनके लिए ये फॉर्मूले जोड़े यूज़ होंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं आप जिस नाल गल तुहानू होर ज़्यादा बैटर वे दे नाल समझ आएगी। ठीक है, लेट अस सी। तो हुण देखो जी क्वेश्चन अपने कोले कि वी हैव 4 सैल्स, 2 सैल्स उपर सीरीज़ दे विच है, 2 सैल्स ये सीरीज़ दे विच है, तो इन्हां दोनों का सीरीज़ कॉम्बीनेशन आपस दे विच पैरलल है। ठीक है, हर एक सैल की EMF जी 2 वोल्ट है, तो इंटरनल रजिस्टेंस R जो 1.5 ओम है, इन्होंने कनैक्ट किया गया एज शोन, तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस इज 10 ओम। ठीक है जी, असीं की कैलकुलेट करना है करंट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट, मतलब जो सर्किट के विचों पॉजिटिव तो लैके करंट I फ्लो करता है इस तरीके दे नाल वो I जो इत्थे जाएगा इत्थे पहुँचेगा I, तो I डिवाइड हो जाएगा जी I1 तो I2 दे विच। ठीक है, तो वो I1 तो I2 जो इत्थे पहुँचणगे तो फिर वो I बन जाणगे। सर्किट दे विच असीं करंट फाइंड करना है जी, हरेक ब्रांच दे विच करंट फाइंड करना है कि इस ब्रांच दे विच, इस ब्रांच दे विच ते इस ब्रांच दे विच, ते सर्किट दे विच की फाइंड करना है जी होर पोटेंशियल डिफरेंस, इस रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं जी, किस तरह सॉल्व करते हैं इनू देखो। पहला तो असीं इस रो दे विच EMF फाइंड करिए। ठीक है, तो टोटल EMF ऑफ फस्ट रो, तो सीरीज़ दे विच EMF ऐड हो जाते जी, असीं हुणे कीता है, तो सीरीज़ दे विच जिहड़ी EMF है वो हो जाएगी जी E1 प्लस E2, मतलब E प्लस E इज इक्वल टू 2E। क्लीयर। इसी तरह सैकेंड रो की EMF कितनी हो जाएगी, टोटल EMF ऑफ सैकेंड रो वो भी हो जाएगी जी E प्लस E इज इक्वल टू 2E। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू गिवन है जी 2 वोल्ट है, तो ये हो जाएगी जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इस तरीके नाल भी हो जाएगी जी 4 वोल्ट। समझ लगी। तो हुण जो असीं नैट EMF फाइंड करनी है जी 4 वोल्ट इहदी होगी, 4 वोल्ट इहदी होगी, 4 वोल्ट तो 4 वोल्ट पैरलल हो गए। पिछले टॉपिक दे विच असीं दस्सिया सी कि जे पैरलल दे विच सैल्स की EMF इक्वल है तो नैट EMF भी 4 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है ना, तो नैट EMF 4 सैल्स कितनी हो जाएगी या नैटवर्क वो हो जाएगी जी 4 वोल्ट। ठीक है, हुण इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड करना है जी। देखो इन्हां दोनों का इंटरनल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ है, तो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ फस्ट रो ये सीरीज़ है जी, तो सीरीज़ के रजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू कितनी है
1.5 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ जी 3 ओम। इसी तरह ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैकेंड रो तो ये भी R + R2R होगी जी, तो भी कितनी होगी 3 ओम। हुण 3 ओम तो 3 ओम आपस दे विच पैरलल च है, ठीक है, तो पैरलल कॉम्बीनेशन बनेगा तो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस उपरले सर्किट का। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किवें फाइंड करांगे जी, फॉर्मूला लगावांगे 1/R इज इक्वल टू 1 जिन्ना रजिस्टेंस है जी 3 + 1/3, उपरली आर्म का भी 3 ओम, निचली आर्म का भी 3 ओम, तो ये हो जाएगा जी 2/3। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल इंटरनल रजिस्टेंस की, RP लिख लो जी, इसनों बैटर है। RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RP की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है, क्योंकि एक सैल के इंटरनल रजिस्टेंस को R नाल डिनोट किया ना, तो टोटल इंटरनल रजिस्टेंस को RP नाल डिनोट कर दें। तो RP हो जाएगा जी 3/2 या इसनों लिख सकते हैं 1.5 ओम। टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रजिस्टेंस होएगा टोटल इंटरनल रजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगा जी एक्सटर्नल 10 ओम प्लस इंटरनल 1.5, ये हो जाएगा जी 11.5 ओम। क्लीयर। हुण सर्किट दे विच करंट कितना फ्लो करेगा, तुहानूं दस्सिया सी करंट थ्रू द सर्किट का फॉर्मूला की हुंदा जी, करंट इन सर्किट का फॉर्मूला, करंट इन सर्किट का फॉर्मूला हुंदा टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टेंस। टोटल EMF कितनी होगी जी, टोटल EMF असीं कैलकुलेट की है 4 वोल्ट, टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया 11.5। जो असीं 4 नूं 11.5 नाल डिवाइड करांगे, तुसीं डिवाइड करके देखिया जे तो आएगा जी 0.348 एम्पीयर, ठीक है जी। हुण गल नूं समझो जी, ये अपने कोल I आ गया, टोटल करंट जिहड़ा सर्किट दे विच फ्लो करता है, मतलब आ करंट जिहड़ा I, ठीक है। हुण जो ये करंट I फ्लो कर रहा है तो ये वैल्यू असीं फाइंड कर ली। हुण ये वैल्यू जो इत्थे जाएगी, इत्थे जाके करंट 2 हिस्सों डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये दोनों हिस्से आइडेंटिकल है। जो दोनों हिस्से आइडेंटिकल होण तो करंट इक्वली डिवाइड होएगा, इसका मतलब I1 ते I2 इक्वल होणगे, तो किंदे इक्वल होणगे I दे हाफ दे, ठीक है, अद्धा अद्धा हो जाएगा जी। तो इसका मतलब है I1 ते I2 किन्ने हो जाणगे, वो हो जाणगे I/2, मतलब 0.348 नूं असीं 2 नाल डिवाइड करांगे तो 2 नाल डिवाइड करके कितना आंसर आएगा जी 0.174 एम्पीयर, ठीक है जी। डिवाइड कर लो इसनों तो इन्ना आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। इसका मतलब करंट आ गया जी ब्रांचेस दे विच। हुण असीं फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा जी V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा देंगे, जिन्ना करंट है तो जिन्ना रजिस्टेंस है। करंट कितना है जी इस आर्म दे विच 0.348 एम्पीयर, ठीक है। तो इसनों मल्टीप्लाई कदे ना करांगे, इसनों मल्टीप्लाई करांगे जी 10 नाल, तो कितना आंसर आ जाएगा 3.48 वोल्ट। तो इन्ना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा 10 ओम के रजिस्टेंस के क्रॉस, जिन्ना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय रजिस्टेंस। तो इस तरीके नाल असीं सर्किट नूं सॉल्व करते हैं जी स्टैप बाय स्टैप। मतलब पहला टोटल इंटरनल, पहला एक आर्म नूं सॉल्व कर लिया, फिर सारियां आर्म्स नूं सॉल्व कर लिया, फिर पूरे सर्किट नूं सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। तो आई होप तुहानूं समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।